تو میں ہمارے جو استاد کریم ہیں سونو رجک سر، میں انہیں دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: گلوں میں رنگ بھرے بادینوں بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادینوں بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو ہمارے سونو رجک سر پلیز آپ آئیں اور ہم لوگوں کو مولانا عبدالکلام آزاد کے بارے میں بتائیں اور اپنی بات رکھیں۔ عزیز طلباء طالبات، اساتذہ اکرام، ایم ایڈ کے ریسرچ اسکالر اور ہر دل عزیز میرے ساتھی جناب اشتیاق عالم صاحب، ہم سب کے دل و جاں، ہم سب کے آن بان شان، مانو کالج آف ٹیچر ایجوکیشن دربھنگا کے پرنسپل جناب فیض احمد صاحب، انٹرنشپ کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھی جناب افروز عالم صاحب، اور آپ سبھی حاضرین جو آج کے اس ورچوئل پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے۔ آج 11 نومبر 2020 کو ملک آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، ایک عظیم فلسفہ داں، ایک عظیم تاریخ داں، ایک عظیم تعلیم داں، ایک مدبر دانشور مولانا ابوالکلام آزاد جی کا یوم پیدائش ہے، اور قومی تعلیمی یعنی کہ ایجوکیشن نیشنل ڈے بھی ہے آج۔ آج کے اس دن کی پرخلوص مبارکباد، بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت مبارکباد آپ تمام لوگوں کو۔ میں کہتا چلوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جی کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو ملک سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، بہت ہی پڑھنے لکھنے کا اور ملک میں تعاون کرنے کا ان کا شروع سے ہی ذہن رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ دور وہ دور تھا جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی داستان سے اور انگریزوں کی داستان میں تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی پوری جو جوانی کا دن تھا انہوں نے اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو 1923 عیسوی میں جو اس وقت کا انڈین نیشنل کانگریس تھا، اس کے سب سے نوجوان جو ہے صدر بھی بنے، اور ملک آزادی کے لیے مہاتما گاندھی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ملک کو آزاد کرانے کے لیے پورے دل و جان سے محنت کیے۔ عزیز طلباء، ایک بات یہ کہانی ابھی ضروری ہے کہ ان کے تمام تر کاموں کو دیکھ کر کے جو ہے انہیں 11 نومبر جو 15 اگست 1947 سے 2 فروری 1958 تک وہ اس ملک ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 1992 عیسوی میں حکومت ہند نے ان کے وفات کے بعد انہیں بھارت رتن ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا، اور 11 ستمبر 2008 سے اس وقت کا جو ایم ایچ آر ڈی منسٹری تھا، جو آج کے دور میں منسٹری آف ایجوکیشن کہلا رہا ہے، اس دن کو جو ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پہ منانے کی تجویز پیش کی گئی، اور اس چیز کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ بہار شری نتیش کمار جی نے بھی اس کے لیے پرجور وکالت کی، اور بہار میں انہوں نے اس کے لیے ان کے اوپر ایک کتاب بھی شائع کی گئی، اور کہا گیا کہ اس دن کو اور ان کی کتاب کو بہار کے تمام مدارسوں میں، بہار کے تمام اسکولوں میں جو ہے پہنچائی جائے، طلبہ تک پہنچائی جائے، اساتذہ تک پہنچائی جائے، اور تحقیق دانوں تک پہنچائی جائے، تاکہ زمین کے آخری
पंक्ति में, आखिरी कतार में बैठे हुए लोगों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की फलसफा को वहां तक पहुंचाने का काम किया जाए। अजीज तुलबा, मैं कहता चलूं कि वो ना सिर्फ हिंदुस्तान को आजादी दिलाए, बल्कि आजाद हिंदुस्तान के तालीमी पस मंजर को भी मजबूत करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1956 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कायम किया गया। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन जिसको टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको पेशावराना तालीम कहते हैं, उसके लिए भी हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अपनी नुमाया जो उनके किरदार रहे हैं और नुमाया शख्सियत, इन चीजों से आसना है और इन चीजों के सरोकार भी है वो और पैरोकार में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अजीत तुलबा कि 1937 में जब वर्धा तालीमी प्रोग्राम चलाया गया था तो इसमें भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि हमारा मुल्क का, हिंदुस्तान यानी कि हमारे मुल्क के बच्चे, ऐसे बच्चे तैयार हो जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर टेक्निकल हो, जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आए। और वो इस बात की भी गौर फिक्र करते थे और वे कहते थे कि ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच का वो ब्रिज का भी काम करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वो कहते थे कि इंसान को अपनी मजहबियत से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करनी चाहिए, इंसानियत पर जोर देना चाहिए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए भी वो पुरजोर वकालत भी करते थे। वे कहते थे कि हर इंसान का हक है उसको आजाद जिंदगी जीने के लिए, हर इंसान का हक है उसको तालीम पाने के लिए, हर इंसान का हक है कि उसके साथ मसावात कायम किया जाए, उसके साथ बराबरी का जो है रिश्ता कायम किया जाए। इसलिए उन्होंने इक्विटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ह्यूमैनिटी का भी वो बिल्कुल इसके वकालत करते थे। और अगर हम देखा जाए तो वो जो है ईस्टर्न लर्निंग एंड लिटरेचर के तहकीक पर भी वो जोर देने की वकालत करते थे। उसके बाद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद फाइन आर्ट्स के तरक्की और उसके नशोनुमा के लिए उन्होंने 3 इदारे कायम किए इस मुल्क हिंदुस्तान में। सबसे पहला था कि संगीत नाटक एकेडमी उन्होंने कायम की, उसके बाद साहित्य एकेडमी उन्होंने कायम की और ललित कला एकेडमी उन्होंने दिल्ली में कायम की। अजीज तुलबा, आप उनके पूरी तालीमी खिदमात को अगर आप देखेंगे तो यकीनन इस बात को कहने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो चमन में दीदावर के मानिंद थे, वो एक ऐसी मोती के मानिंद थे, वो एक ऐसी चमक के मानिंद थे जिसकी चमक के आगे, जिसकी नूरानियत के आगे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा आलम उनके चमक से रोशनास हुआ है। अजीज तलबा, मैं ये बातें कहता चलूं कि उन्होंने कई सारे तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं जिसमें कि इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद आप देखेंगे गुब्बारे खातिर, अल हिलाल जैसी कई जो है लिटरेचर चीजें उन्होंने जो है इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए वो दिए हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अजीज तुलबा कि उनका एक स्टेटमेंट है तालीम के ज़िमन में, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं कि एजुकेशनिस्ट शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, इंटरप्रेन्योरियल एंड मोरल लीडरशिप ऑन स्टूडेंट्स एंड बिकम देयर रोल मॉडल। वो कहते थे कि एक उस्ताद को तालीम के जीवन में उसका एक रहनुमा होना चाहिए, उसकी रहनुमाई तालीम के ज़िमन में होनी चाहिए और हर एक तालीम दा इंसान को और हर एक तालिब इल्म को इल्म का प्यासा होना चाहिए। इल्म की प्यास को बुझाने के लिए वो हर तरह की किताबें उनको जो है पढ़नी चाहिए। अजीज तलबा, भी ये बातें मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि वो एक बहुत ही उसको क्या कहते हैं, एक बहुत ही दुरंदेश
मिजाज के इंसान थे। और कहा जाता है कि मौलाना आजाद एक अबकारी शख्सियत के सियासी रहनुमा थे और इनके फिक्र और फलसफे में इतनी तवानाई और कुव्वत है कि इसकी रोशनी आज भी मध्यम नहीं है। और ये बातें काबिल कबूल है, पूरा आलम इन चीजों को कबूल किया है, बल्कि आज की तारीख में इसके नजरियात और इनकी खिदमात जो है मजीद अहमियत का हामिल है और जो है हामिल रहेगी जब तक हिंदुस्तान रहेगा और हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत जिंदा जावेद एक मिसाल के तौर पे, एक मिसाल के मानिंद जिंदा रहेगी। अजीज तलबा, मैं ये बातें कहता चलूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक वसीउल मुताला दानिश्वर थे। उन्होंने रिवायती तरीके से तालीम हासिल नहीं की थी। उनको जो है उनके चूंकि वो बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे तो उनको दीगर जबानों की तालीम, फिलॉसफी की तालीम, एजुकेशन की तालीम, रिलीजियस मजहबी तालीम उनको घर पर ही मिली। रिवायती तालीम उन्होंने हासिल नहीं की। इसके बावजूद एक जहीन शख्सियत के तौर पे वे उभरे। उसके बाद उनको घर पे ही जो है अरबी, फारसी, उर्दू में महारत हासिल की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई दीगर जैसे तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच जबानें भी सीखी। मौलाना आजाद एक जदीद फिक्र और नजर के आलिम, दीन और मुस्तहका कौमियत के आलम बरदार भी साबित हुए और उन्होंने अपनी पूरी अमली जिंदगी से इन तमाम चीजों को करके दिखलाने का काम उन्होंने अपनी अदब के जरिए, अपने अमल के जरिए, अपने तजर्बात के जरिए, अपने खिदमात के जरिए, अपने तारीखी नजरों और पेश नजर के तई उन्होंने दिखलाने का काम किया है, जो हम सब लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और आने वाले वक्तों तक उनकी मिसालें हमारे बच्चों को हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में और अमली जिंदगी में दी जानी चाहिए। और हम सब लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की शख्सियत से सीखनी चाहिए, उनकी तरह बनने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और ये बातें जरूरी भी समझ में आती है कि मौलाना आजाद जो है एक साइंसी गौर फिक्र के लिए भी बहुत ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि एक इंसान को जो है पूरी चीजें परख कर यानी कि लॉजिकली प्रूव करनी चाहिए। कोई भी चीज अगर ये कह दी जाए कि ये 2 और 2 4 होगा तो इसको मत मान लो कि ये 2 और 2 4 हो जाएगी, बल्कि इसको जो है सच्चाई की कसौटी पर, हक की कसौटी पर इसको तलाशने की कोशिश करो। जब ये बातें साबित हो जाए कि 2 और 2 4 होगी तभी उस चीजों को माननी चाहिए, नहीं तो पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि आखिर 2 और 2 4 हुआ कैसे। इसके लिए भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ICSR, ICMR, ICSR, IIT, UGC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसे बड़े बड़े तालीमी इदारों की बुनियाद रखी और उनको कायम करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। और जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो आजादी के दौर में ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद पर और लाल किले की दीवार से खड़े होकर कहा था कि ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इस मुल्क को कहाँ छोड़कर जा रहे हो। अगर तुम बलूचिस्तान में भी रहोगे तो तुम्हारी शहरियत हिंदुस्तानी ही होगी। अगर तुम पाकिस्तान पेशावर भी चले जाओगे, सियालकोट भी चले जाओगे, कराची भी चले जाओगे और उस वहां का पंजाब भी अगर तुम चले जाओगे तब भी तुम्हारी शहरियत हिंदुस्तान ही रहेगी। तुम्हारी तस्दीक और तुम्हारी पूरी पहचान हिंदुस्तानियत ही रहेगी। इसलिए ये तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान तुम्हारे एंसेस्टर की सरजमी है। तुम इस मुल्क को छोड़कर, इस वतन को छोड़कर, इस मिट्टी को छोड़कर ना जाओ। तुम यहीं पैदा हुए हैं, यही तुम्हारी पहचान है। अजीज सुबह मैं ये बातें कहता चलूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद यकीनन एक बहुत ही माहिरीन फलसफादां भी थे और हम सब लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। वक्त काफी हो चुका है और मैं यही कहता चलूंगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के पूरी अमली जिंदगी के हवाले से कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, रास्ते बड़े कठिन हैं, निकल सको तो चलो, इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में कोई किसी को रास्ता नहीं देता, आप खुद संभल सको तो आजाद जी के साथ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज तलबा। मैं अपने तकरीर का जो है इख्तिताम यहीं पे करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।